السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیے، کیسے آپ لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سر۔ تو ہم پہلے جو دیتے ہیں اٹیچ پروناؤنس کی پریکٹس کرتے ہیں اور آگے جا کے چلتے ہیں۔ کل ہم دیکھ چکے ہیں اس مرد کا اور اس عورت کا، ٹھیک ہے؟ مرد کے لیے ہو لگانا پڑے گا اور اس سے پہلے رب کے اوپر پیش آنا ضروری ہے۔ رب وہ اس ایک مرد کا رب وہ ہاں، دونوں میں فرق محسوس کیجیے، یہ ہا آ رہا ہے وہ ہو آ رہا ہے۔ ایک غائب عورت کا رب، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرز پر دین کو دینوں ہو، ایک غائب مرد کا دین، دینوں ہا ایک غائب عورت کا دین، کتابوں ہو ایک غائب مرد کی کتاب، کتابوں ہا ایک غائب عورت کی کتاب۔ اب یہ ایک غائب کے دونوں ہو گئے، اب تھوڑا ایکسپینشن کریں گے۔ ہوا یعنی ایک غائب مرد، ہز رب ربو ہو، وہ تمام غائب مرد، ان تمام غائب مردوں کا رب، ربو ہم، انتا یعنی تو ایک مرد، انتا کا کیا بنے گا؟ تیرا رب، ربو کا، انتم، انتم یعنی حاضر سامنے تمام مرد، تم تمام مردوں کا رب، ربکم، اب متکلم اسپیکر، انا یعنی میں، میرا رب، ربی، نانو یعنی ہم سب، ہمارا رب، ربنا، اور جو ربنا ہے وہ دعا میں آتا ہے۔ ربنا کا مطلب میرا ہمارا رب، اور ربنا کا مطلب اے ہمارے رب۔ اور اتنے چیزیں جو ہے کامنلی قرآن میں آتے ہیں، یا زیر ہی لگائیں گے تو میرا، کا زبر کا یعنی تیرا، نون الف نہ لگائیں گے تو ہمارا، کم یعنی تم سب کا، ہو ہی ہا لگائیں گے تو اس ایک غائب مرد کا، ہم لگائیں تو ان تمام غائب مردوں کا، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک بار فاسٹ تھوڑا سا پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو پریکٹس میں جائے گی۔ اب یہاں پہ لکھے ہیں صدرکا، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا پیچھے دیکھنا ہے، ہی زبر کے بعد میں کیا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ صدرکا تیرا سینہ۔ اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے، ذکرہ اس نے ذکر کیا، نساءنا نہ بولے تو ہماری عورتیں، اب اہل کے ساتھ یہ لگا ہوا ہمارے گھر والے، قال اس نے کہا، ابن ہے ای لگا ہوا، ابنی، ابنی یعنی میرا بیٹا، میرا یہاں دل۔ دیکھیے کہ میرا لگا، نزلہ اس کا مطلب ہے اتارا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اتارا، اچھا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ انزلہ الا تو ایک ساتھ اتارا، ٹھیک ہے؟ دھیرے دھیرے کلیئر کرو۔ ابنا اونا، ابن کا مطلب، ابن کا مطلب ایک ہے، ابنا کا مطلب تمام، ہمارے بیٹے۔ اب یہاں پہ متصل ضمیر لگی نہیں ہے، انذرا اس نے تنبیہ کی، اس نے وارن کیا۔ اب دیکھو پھر سے، ابنا ہم سے پڑھو، ہم یعنی ان سب کے ان سب بیٹے، کے بیٹے۔ ذنوبنا نہ دکھ رہا ہے، ہمارے ہمارا۔ اولاد، ہماری اولاد، ہمارے گناہ، ذنوب کا مطلب تھا گناہ، سوری، قرآن میں ظلم بنا ہاں، ربنا اننا آمنا، اور ظلم بنا۔
तो कतला उसने उसने कत्ल किया। अम्वालुहुम, हुम को पकड़ो, हुम यानी उन सब के काम, हमारा। कतबा उसने सर लिखा, ये अम्वाल है ना, अम्वाल माल से है, आमाल नहीं है वो। ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही है। अम्वाल का मतलब है माल, है, आमाल है तो अमल हो, ठीक, करेक्ट। कतबा उसने लिखा, जुर्रियाती, जुर्रियात यानी हमारी औलाद, खलका उसने एक काटा। गायब ने पैदा किया। अब बोलो कौमी, या दिख रही है, और मेरा मेरी मेरी कौम। अब यहाँ पे तीन जबर दिख रहे, साअला पूछा, ने पूछा उसने सवाल, पूछा किया, ज़य्यना उसने जीनत उसने बख्शी यानी सजाया, उसे डेकोरेट किया, सजाया। कौमुहु, हु यानी ये गायब की कौम। अखरजा उसने निकाला, खरजा निकला, अखरजा का मतलब उसने निकाला। रसूलकुम, कुम यानी सामने वाले, तुम सबका रसूल। तुम सबका कज़्ज़बा इसमें कुछ अटैच नहीं है, उसने झुटलाया। झुठलाया। उसने झुठलाया, खतायाकुम, खता बोलते छोटी गलतियां, तुम तुम सबकी सबकी। गलतियां, तुम सबकी खताएं, खताएं गलतियां, छोटी गलतियां। गफरा उसने माफ किया। अच्छा, गफर मा, सदरका उसका सीन, ठीक है, तो थोड़ी करेक्ट, प्रैक्टिस हो गई। वो अच्छी। तो ये या यानी कि मेरा, का यानी तेरा, ना यानी हमारा, कुम यानी तुम्हारा, हो हा ही बोले तो उसका, हम यानी उन सब का। चलिए, कल ये चीज नहीं थी, आज रिपीट करेंगे। हुरूफ अतफ, हर्फ एक को बोलेंगे, जमा को हुरूफ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन आ रहे हैं। एक आ रहा है वाव, वाव का मतलब है, उर्दू वाले लिखेंगे और, और फा का मतलब है तो या लिहाजा। पुराने जमाने के लोगों को बस बोलना है तो बोलो, मेरे को कोई एतराज नहीं। और ये जो हमजा आएगा इसको बोलते हैं हमजातुल इस्तिफाहम, बोलो क्या बोलते हैं? हमजातुल इस्तिफाहम। इस्तिफाहम यानी कि इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमजा। क्वेश्चन वाला। हमजातुल इस्तिफाहम, अच्छा। ऐसा हमजा जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वाव के मतलब क्या है? और फा के मतलब क्या है? तो आसान इस करेंगे, तरह अपन आसान करेंगे। और हमजा का मतलब है क्या? हाँ, हाजा तालिबुन, है क्या ये तालिब इल्म? ठीक है, इजी। ठीक है, हाँ इसे, शाबाश। अच्छा, अब ये वाव लेकर हम हुआ को लगाएंगे तो क्या होगा? हुआ का मतलब वो है, हुआ का मतलब एक मर्द गायब है, वह हुआ बोल तो एक गायब मर्द और एक गायब मर्द है। और एंड ही इज, बोलो एंड ही इज, अब वाव लगाए तो और, एंड दे आर, हम बोल तो दे आर, एंड दे आर। यस। तो बोलो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, अरे वह अला कुल्ली शैइन कदीर। और वहां, और वही वो है तमाम शयों पे, हर चीजों पर कादिर, एम्पावरिंग। वह अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ, शय का मतलब है हर चीज, एवरीथिंग। हर शय, हर He शय। is all empowering and powerful of खादिर ऑफ ऑल। everything। जमीन पे, आसमान पे, और जमीन और आसमान के बीच में हर चीज पर वो ही कादिर है, ऐसा बता। तो ये ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, एक एक चीज आपको जो है ना, ये सब दुआओं में वगैरह काम में है। अब देखो, फा लगाइए, क्या लगाएंगे? फाल, फा बोले तो सो, सो ही इज, हम बोले तो हुआ, या सो ही इज, करेक्ट। और फाहुम बोले तो सो दे आर। हो दिया।
फअंता बोले तो सो यू आर, So you are. फअना बोले तो सो So we are. आई एम, फअंतुम बोले तो सो यू आर, यू ऑल आर। फनहनु यानी कि सो आई, वी आर, वी आर। अच्छा, मैं 1 मिनट रुकता हूं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझा तो मेरे को पूछो तो मैं रिपीट कर लूं। लेकिन ये हजारों बार आए हैं, थोड़ा याद रखो। सर अगर पा का मीनिंग फिर भी हो सकता क्या? फिर हाँ, अभी फिलहाल तो बोल के याद करो, बाद में उस पर रिसर्च करेंगे। हाँ, उसके बाद बोलने के लिए सुम्मा आता है, ठीक है? क्या आता है? सुम्मा। सुम्मा कब आता है? So then. आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, बराबर. इमीडिएटली आफ्टर दैट। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन. हाँ, यस, उसके बाद, यस, यानी कंसेक्यूटिवली चेन में सेकंड चेन, स्टेप्स में सेकंड स्टेप, सुम्मा। Yes. सुम्मा. अच्छा अच्छा. मन, मन पूछेंगे ना Who? तो मन का मतलब कौन? अब अगले वाले बोलो मन अंता है, मैं अनंता. बराबर. तू कौन? हाँ, बराबर. हाँ। तू कौन है? हाँ। चलो, अब मन का मतलब कौन मालूम गया, रब भी मालूम, हो भी मालूम। कौन है उसका रब? बराबर. कौन है उसका रब? रब्बुहुल्लाहु. तो जब तो उसका रब अल्लाह है, हाँ. तो कैसे करेंगे? उसका रब यहाँ पे है, बीच में क्या है? उसका रब है अल्लाह। अब देखो क्या क्या 3 टुकड़े क्या रहे, मन आ रहा, रब्बु आ रहा और हुम आ रहा। हुम यानी उनका, उनका. उन तमाम गायब मर्दों का रब कौन है? बोलो, रब्बु हुम। ये इसको सुनो, हाँ, जरा गौर से सुनो। अब ये मीम जो है, पेश जो आया ना, एक्स्ट्रा आया। क्यों आया भाई? यहां से अल्लाह को मिलाना है, रब्बु हुमुल्लाहु। अच्छा अच्छा. ये रब्बुहुमुल्लाह. राइटिंग रूल है, राइटिंग रूल यानी कि टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज, रिदमिक बनाना है। क्या बनाना है? बराबर है. सिम्फोनाइज. सिंक्रोनाइज, रिदम, रिदम आना चाहिए, म्यूजिक आना चाहिए। सही. तो रब्बु हुम, अल्लाह को पढ़ने में जब नाटक जाना पड़ता, तो यहाँ पे ये पेश इसलिए किया जाता है कि तजवीद का रूल है रब्बु हुमुल्लाहु। पहले अपन ज़ेर लेके देखते, देखो जरा बत के टाइम पे अपन ज़ेर दिए थे, यहाँ पेश दी। अब ये नया वर्ड आ रहा है, सवाल करने वाला वर्ड है वो माँ। माँ यानी क्या? व्हाट? राइट. माँ. डिटेल क्वेश्चन में आ रहा है। ये डिटेल क्वेश्चन क्या लिखे अपन ने? माँ दीनू का, टुकड़े करो। माँ का मतलब व्हाट, दीन का मतलब दीन, का मतलब तेरा। व्हाट इज योर दीन? यस. व्हाट इज योर दीन क्या है? व्हाट इज योर रिलीजन? खबर का क्वेश्चन. जैसा बिहारी क्वेश्चन, आप कौन जात के हो? ये वैसा है। दी नी ई मीन्स मेरा दीन। मेरा दीन इस्लाम है. माशाअल्लाह, मेरा दीन है इस्लाम। मेरा दीन है इस्लाम। अब जरा और क्लियर हो गया कल से आज? हाँ, तो ऐसे ही होता, रिपीट करे ना तो बेहतर कदम चढ़ता। चलो अब प्रैक्टिस करो, तुम पढ़ो। चल माजिद पढ़। मन रब्बु हो, मन रब्बुहु. मीनिंग बोलो जी। तुम्हारा रब कौन जाट है? पढ़ने कूदने का नहीं, क्योंकि नई लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। इसके 3 टुकड़े करो। मन रब्बु हो, पहले कौन है बोलो? कौन? रब. उसका रब कौन है? उसका रब कौन? जवाब दो। रब्बुल्लाहु. हाँ, उसका रब अल्लाह है है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रब है अल्लाह. हाँ, उसका रब है अल्लाह। रे भगवान, उसका रब है। ये तुम उसका अल्लाह है, उसका रब अल्लाह है. इसको तुम इसको छोड़कर नहीं पढ़ सकते। रब है उसका अल्लाह, ऐसा. हाँ, नहीं, उसका रब, उसका रब अल्लाह है या उसका रब है अल्लाह। हाँ, उसका रब है अल्लाह. हाँ, अब मन अलग करो, रब्बु अलग करो, हुम अलग करो। हुम यानी उनका, उनका मन रब्बु हुम।
कौन मान है रब रब उनका उनका? कौन है रब उनका? कौन है उन सब का रब? उन तमाम मर्दों का रब। कौन है उन तमाम मर्दों का रब? तो फिर इसको तोड़ दो यहाँ पे, उन तमाम का रब है अल्लाह। अच्छा, उन तमाम का रब है अल्लाह। तो ये हु की बात चल रही है ना, हु बोले तो उनका, और हुम बोले तो उनका, हु बोले तो उसका, हुम बोले तो उनका। ये आपको गाइड है यहाँ दिया हुआ है। हाँ चलो, कोई बाजी पढ़ो, आप कोई पढ़ना चाहते हैं? मन रब्बु का, 3 टुकड़े करो। मन अलग, रब्बु अलग, का अलग। का टुकड़ा यहाँ पे, का कौन है भाई? का दिख रहा क्या? नहीं है। का मतलब क्या है? तेरा। पढ़ो। तेरा मन रब कौन है? मन रब का, तेरा रब कौन है? हाँ, अभी अभी मेरी एक बात सुनो, हमको लफ्जी तर्जुमा करना है, आपकी उर्दू नहीं चाहिए। बोलो, कौन कौन है है तेरा रब? तेरा रब? तेरा रब? कौन अब है बात नहीं है तेरा रब कौन है, तेरा रब क्या, किसी को बोले चलता है, लेकिन आप जब अरबी पढ़ रहे हैं तो कायदा पकड़ के चलो। मन का मतलब कौन, का मतलब तेरा, रब का मतलब रब। कौन है तेरा रब? कौन है तेरा रब? हु इज योर चेरिशर? हु इज योर सस्टेनर? मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह है। रब्बी अल्लाह। अब फिर टुकड़े करो। मेरा रब आ गया। रब खामोश खामोश हो जाओ। रब को क्या याद लगा हुआ है? मेरा रब, इसके बीच में है आएगा अल्लाह, क्योंकि ये अल आ रहा ना, अल के पहले है आना। मेरा रब अब है। हाँ, अब जरा कौन पढ़िए बोलिए मुझे, यहाँ पे कितने टुकड़े? मन है, रब्बू है और हा है। उनका पढ़ो। मन का मतलब कौन? रब्बुहा, कौन है रब? एक औरत का। मन रब्बुहा। हाँ, कौन तेरा किधर है? तेरा है इसमें, इसमें हा का मतलब उस औरत का। कौन है उस गायब औरत का रब? औरत का रब मतलब उसका। हाँ, उस गायब औरत का रब है अल्लाह। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, फेंका फाकी करने के बजाय जरा सोच के बोलो। तो देखो यहाँ पे आ गया रब्बू, रब्बू तो रब, हा बोलता औरत का रब है अल्लाह। अच्छा, उसका औरत का रब, रब है। अल्लाहु एक मोनस का रब है अल्लाह। है अल्लाह। अब माँ का मतलब क्या है? क्या? क्या? माँ का मतलब ये कौन और ये क्या? क्या मिल गया? दीन मिल गया, हा मिल गया। हा औरत है। What क्या is her है? deen? What is her religion? क्या क्या है? दीन? क्या है उसका दीन? औरत, उस औरत का दीन एक मोनस का दीन क्या है? उस मोनस का दीन क्या है? जवाब दो। दीनुहा, एक मोनस का दीन है इस्लाम। एक औरत का दीन है इस्लाम। हाँ, माँ बोले तो वट, किताब बोले तो किताब, हा बोले तो औरत। क्या है एक औरत की किताब? क्या है औरत की? तो जवाब दो, किताबुहा, उस औरत की किताब है कुरान मजीद। क्या हुआ? हाँ, सबको समझ में आ गया भैया? हाँ, ब्यूटीफुल। चलो, अब हम सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, हल। अब जरा याद रखो, अरबी में ये दोनों भी आते हैं। कभी ये हमजा आ जाता है इस्तेफाम वाला, या कभी हल आता है। ओके, है क्या बोलने के लिए? क्या है क्या? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? है क्या? जी एमिजार के लिए हमजा आता है, लेकिन ये हल जो है सबके लिए कॉमन, सबके लिए कॉमन आता है। राइट। हल is used for all four, but हमजा is used for all three. आपको पढ़ने से आदत होती, फिक्र मत करो। चलिए, हल अंता मुस्लिम, गड़बड़ नहीं करेगा। अंता का मतलब क्या है क्या तेरा? तू ये क्या तू? तेरा है इसलिए मांझी इधर है क्या तू? ये है सेपरेट प्रोनाउन, सेपरेट प्रोनाउन, राइट? है क्या तू? है क्या? बोलो, है क्या तू? है क्या तू? एक मुसलमान, हाँ, एक मुसलमान। कोई एक मुसलमान नकीरा है।
تو جواب آ رہا ہے ہاں میں ہوں ایک مسلمان. نام انا انا مسلم. مسلم. تو اس ہاں کے میں لیے ہوں آپ کو سیو کر کے رکھو. یہ اس کو ایسا بولیں گے اپن آر یو اے مسلم. شہباز. ہاں مسلم یعنی مسلمون. مسلمون. ہاں نکیرہ. یس یہ سوال یا نشان. تو Yes. یہاں پہ نام کا مطلب ہے یس. یس فل اسٹاپ. آئی ایم اے یس فل مسلم. اسٹاپ. آئی ایم اے مسلم. اچھا یس الگ اور آئی ایم مسلم دو سینٹینس. یہ دکھ رہا کاما. ہاں عربی کی مزہ دیکھو. اب دیکھو یہاں کون ہے؟ حل آ گیا. حل بولو کیا ہے. حل تو ہے کیا. انتم یعنی تم سب. سامنے والے سے پوچھو. دو چار ایسے لوگ کھڑے ہیں. یہاں پہ کیسا پوچھیں گے؟ یہ دیکھو پہلے پوچھیں گے. گڑبڑ نہیں کرو. کچھ لو. حل انت مسلم. اچھا آر اکیلے یو مسلم. ہاں اب جمع والا پوچھو. حل انت مسلمون. حل انتم انتما مسلمون. مسلمون. حل انتما مسلمون. تما کہا ہے بھی. تما حل کہا انتا ہے. مسلمون. حل انتا حل انتم مسلمون. انتا نہ گھٹا. یہ کیا ہے؟ انتم حل انتم مسلمون. 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 اچھا کیا آپ سب حل مسلمان ہیں؟ انتم کیا تم دونوں ہاں کیا تم سب لوگ مسلم ہیں؟ یہ یہاں پر کیا ہے؟ ایک انگلی بتائیے آپ. اچھا اور یہاں پہ 4 انگلی بتائیے سب کو. یہاں موٹا ہے. آر یو آل مسلمس. Are you all Muslims, right? تو جواب دے رہے ہیں. نام. یہاں پہ انا پہ جواب آیا تھا. ہاں میں ہوں. یہاں پہ آیا یس وی ہاں آر. ہم سب Yes, we are Muslim. ہم سب مسلمان ہیں. وی آل آر مسلم. مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے. یس. تو اس سے ایسا کرنے سے گھر میں بات کرنے کے لیے آپ کرتے جائیں گے نا تو آپ کی نظریں بیٹھیں گی اس کے اوپر کیا کس کو بول رہے ہیں. تو آپ ذرا ایون اسکرین شاٹ کرنے کے لیے بھی جو نا کنجوسی کرتے ہیں. اتنی کیا کنجوسی ہے. اسکرین سیو کرو. جا کے دیکھو. پریکٹس کرو. کیلا. گڈ. کیونکہ اس سے بات کرنا آ جاتا بھائی. صحیح ہے. ہاں اب ذرا دیکھیے ایک اور چیز کل نہیں دیکھے تھے. جب ہم ال لاتے ہیں تو پرٹیکولر کو بتاتے ہیں. کسی نام کو معرفہ کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ ال. اور ال جیسے ہی لگاتے ہیں ان والے کو نکیرہ کو تو اس کے 2 پیج میں سے 1 پیج گر جاتا ہے. بچتا یہ الکتاب. مخصوص کتاب. پرٹیکولر کتاب. اور خالی کتاب ہے تو ایلی بک. اس کو عربی میں نکیرہ معرفہ بولتے ہیں. نکیرہ معرفہ. چلیے پریکٹس کیجیے. مسلمون بولے تو کیا ہے؟ ایلی مسلم. کوئی ایک مسلم. المسلمون کا المسلموں کا مطلب کیا ہے؟ پرٹیکولر مسلم. وہ خاص خاص مسلم. مومنون بولو تو اینی مومن. کوئی ایک مومن. المومنون بولو تو اسپیسیفک مومن. خاص مومن. صالحون بولو تو اینی پائس مین. کوئی بھی نیک آدمی. الصالحون بولے تو پائس مین پرٹیکولر. Particular ہے. کافرون بولو تو اینی کافر. ڈینائر. ایک پرٹیکولر کافر. یہ پرٹیکولر Particular کا. مشرکون بولے تو کوئی بھی مشرک. المشرک بولے تو مخصوص مشرک. نکیرہ کو کامن ناؤن بولیں گے کیا؟ اور وہ معرفہ کو کامن انڈیفینٹ ناؤن بولیں گے. آپ ہمیشہ پوچھتے میں لکھ دیتا ہوں. کامن ناؤن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کامن انڈیفینٹ کامن ڈیفینٹ. ہاں اس میں کون سا عقل کا کام ہے؟ ایک ہوتا ہے انڈیفینٹ. اے این اور ادھر دی. ایک ہوتا ہے انڈیفینٹ اور ہوتا ہے ڈیفینٹ. انڈیفینٹ کو نکیرہ بولیں گے. اس کو معرفہ بولیں گے. آرٹیکلس. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یس آرٹیکلس. ایک واحد کتاب. کوئی تو بھی کتاب. کوئی تو بھی کتاب ہے. بولو یاد کرایا تھا میں نے. کوئی تو بھی کتاب ہے. الکتاب کتاب. اچھا خاص کتاب. کوئی particular کتاب. کتابانی
दो किताबें, दो किताबें, खास दो किताबें, ये दो किताबें हैं किताबान और यहाँ पे दो किताबें, टू बुक्स आर, यहाँ पे टू बुक्स, कुतुबुन मेनी बुक्स, मैंने मेनी बुक्स, अल कुतुबु पर्टिकुलर, मेनी बुक्स, कुछ खास बहुत सी किताबें, हाँ माशाअल्लाह, खास बहुत सी किताबें। मुदर्रिसुन पढ़ो, कोई तो भी एक मुदर्रिस, हाँ मुदर्रिसानी, कोई तो भी दो मुदर्रिस, मुदर्रिसूना, कोई तो भी तमाम मुदर्रिस, हाफिज साहब ने पढ़ाए, मैंने पढ़ाए। तो ये पूरे रफा हालत में देखो, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसूना, तीनों भी रफा में। अब इनको नसब हालत में लिख जाओ, मुदर्रिसन, मुदर्रिसैनी, मुदर्रिसैनी। दिखा नहीं सर वो, अरे छोटा करो ना थोड़ा। मैं दूसरा चार्ट लेता हूँ, अच्छा चार्ट लेता नहीं, ये बड़ा हो गया स्क्रीन आपका। हूँ। हाँ अरे छोटा श्रिंक, हाँ श्रिंक, नहीं आ रहा। नहीं, ये बराबर तुमको नहीं समझ में आएगा, मैं उसको दूसरा देखूंगा। नहीं, लेफ्ट साइड लेने का उसको। मैं लेता ना, अच्छा लेता ना, कोई परेशान हो रहा। वो मैडम नहीं थी, वो 4 बजे आने वाली थी। वो मैं अलग से लूंगा, बेफिक्र, उसकी स्लाइड जरा ठीक ही आएगी। अच्छा, चलिए ये पढ़िए, वो है कोई एक मुस्लिम, मैंने जानबूझकर इस पे हरकत नहीं लगाया, आप उर्दू के जैसा नहीं पढ़ेंगे, अरबी के जैसा पढ़ेंगे। हुआ मुस्लिमुन, हाँ अब दूर हाथ करो, वो सब है जमा मुसलमाना, सामने हाथ करो, तू है एक मुसलमान, हम सब है मुसलमाना, अना मुस्लिमून, मैं हूँ एक मुसलमान, मैं हूँ एक मुसलमान, अना मुस्लिमुन, हम सब है मुसलमाना, तुम मुस्लिमूना, तुम सब है मुसलमाना, तुम सब को अंता कैसे होता माजिद, अंतुम मुस्लिमूना। अब मैं एक नई चीज लेने लगा हूं, फर्स्ट टाइम ले रहा हूं, प्रीपोजिशन। बोलो प्रीपोजिशन, इसको क्या नाम है इसका? एक रहे तो हर्फ, जमा रहे तो अच्छा, जर क्या करते भाई, जरा गौर से सुनो मेरी बात, बाकी सब लोग मुंह बंद रखो, मेहरबानी करके खामोश हो जाओ, हो गए? हाँ, सबके लिए एक मैं थंब रूल बता रहा हूँ, थंब रूल यानी हमेशा 100% होता हो, कोई भी इस्म, बोलो कोई भी इस्म, जब इस्म आएगा तो इसके सामने ही हर्फ जर आता है, बोलो सामने ही जर आता है ना, हर जर आया, उल्टा करो, हर जर आया तो इस्म आना कंपल्सरी है, हर पे जर आया तो इस्म आना कंपल्सरी है। हाँ, तो हर जर को देखकर आप इस्म को पहचान सकते हैं, इस्म को पहचानने का ये भी एक तरीका है माजिद साहब। यस सर। अच्छा, प्रीपोजिशन आएगा करेक्ट, तो हर जर आएंगे। हो। अब जरा मेरे तरफ देखिए, ये क्या है मेरे हाथ में? चश्मा। और ये क्या है? नाक। ये दो नाउन के बीच में क्या है, बोलो चश्मा कहाँ है? नाक पर चश्मा है, पर। हाँ, तो नाक नाउन है, पर जो है ना अला है। क्या है? अला। अला का मतलब है पर।
تو جب بھی حرف جر آتا ہے کس کے سامنے اس کے پہلے اس کے بعد کون آتا ہے؟ ناؤن. برابر ہے. بولو. بعد آتا ہے کہ پہلے سر؟ حرف جر کے بعد اسم آنا جب حرف جر کمپلسری ہے. آتا ہے اس کے بعد کون آتا ہے؟ اسم آنا کمپلسری ہے. یس. اور اسم کے نیچے اے ہے یا زیر، دو زیر دو آنا زیر. ضروری ہے. صحیح ہے کیونکہ وہ ہاں، حرف باجی جر کے کچھ پوچھ رہے تھے آپ. باجی کیا بولے آپ بولو. کچھ پوچھ رہے تھے باجی آپ. رفع نصب جر کے ٹائم پہ سیکھے تھے. ہمیشہ ہاں، حروف جر کے بعد ہی اسم آتا ہے نا سر. ہاں؟ حرف جر کے بعد اسم آتا. میری بات کو گول مت گھماؤ. جب بھی حرف جر آتا اس کے بعد کون آتا؟ بولو، ریپیٹ کرو میرے ساتھ. حرف جر کے بعد کون آتا؟ کمپلسری اسم آتا. سیدھی سی بات ہے. اب وہ نیوٹن بننے کی کوشش مت کرو. نیوٹن بنیں گے تو مریں گے. اس کے بعد کون آتا؟ حرف جر کے بعد اسم اور اس میں نیچے ایک زیر یا دو زیر رہتے. ہے نا. برابر. چلو اپن پہلا ایکسپیریمنٹ کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الحمدللہ. الحمد. آپ دیکھو ماجسٹر، آپ سب لوگ دیکھو بھائی. اب اس کے 3 ٹکڑے کرو. انا بولے تو کیا؟ میں. اب اس کو اس کو چھوڑ دو. یہ ہر جر آ گیا. دیکھو ہر جر آ گیا. برابر ہے. حرف جر کہاں ہے ہر جر؟ فی بولے تو میں ان. اچھا اچھا. اب یہ البیتو تھا. کیا تھا؟ البیتی ہوگا وہ. ہاں وہ چھٹی کھینچے اس کی نیچے رہ گیا. رائٹ. البیتی ہوگا. حرف جر کی وجہ سے انا وہ فی البیتی، میں حرف جر گھر آ میں جائے گی. ہوں. تو بچوں میری بات سنو اردو والے. یہ فی جو حرف ہے یہ عامل ہے. کون ہے یہ؟ آمین. عامل معلوم ہے تم کو؟ جو جادو کرتا پرانے کہانیوں میں تھا. دیکھو ایک آدمی ہے، راجا ہے، جادوگر نے چھو کرا بکری بن گیا. عمل کرتا. عمل یعنی اس پر کام کرتا. تو یہ ہر جر اس پہ کام کر کے پیش سے زہر کرتا. اچھا 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 اچھا. حرف جر پیش سے زیر کرتا. ہاں زیر یعنی کہ گرا لیتا اس کو. ہونے کو گرا لیتا. رائٹ. ایسا عمل کرتا ہوں. ہاں بات سمجھ میں آئی؟ یس. ریپیٹ کرو. ہر جر آیا تو اس کے بعد اسم آتا اور اسم کو ڈھیر کر دیتا. میں بولوں حرف جر آیا تو اسم آتا، اس کے پیش کو ڈھیر کر دیتا، زیر میں بدل دیتا. اور ایک زیر یا دو زیر آتے. ایک زیر یا دو زیر. ٹھیک ہے. یس. ہاں اب ذرا پڑھو. الا کا مطلب ٹو ورڈس. ادھر. فار کا مطلب لی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے لیے ہی ہے. فار اللہ. It belongs only for Allah. ہاں. من کا مطلب سے. الہ کا مطلب کیا سر؟ ٹو. کی طرف، کی جانب. الا علی فی من ان حتی لی. اچھا کریں گے اپن. ہاں دیکھو ماجد کیا لکھا میں نے؟ ذہبا. ذہبا. اب ذہبا کے وجہ میں سکون دے دیتا ہوں. اور یہ ذہبنا. کیا بتاؤ؟ ذہبتو. تو مطلب بول ماجد. ہاں ذہبتو. گیا. مارا. اچھا اچھا. نہیں مارا نہیں. میں گیا. میں گیا. ذہب تو گیا. ہاں گیا میں. اب اس کی جگہ کیا کرنا؟ نکلا بولنے کے لیے کیا بولیں؟ کوشش کرو. خرجا. ہاں خرجا. خرجا. خرجا وہ نہیں نکلا. میں نکلا بتانے کے لیے خرجا پہ کیا کرنا پڑیں گے؟ میں نکلا. میں نکلا. اوکے باس. یہ لے لیں گے. تم کیا یہ خرجتی. مین یہ کہیں کو آیا ماجد یہ نیا تو کھیل کیا کر رہا ہو؟ اچھا اچھا. مذاق مت کر.
मिन का मतलब निकालो। फ्रॉम से फ्रॉम से अब यहाँ पे लगा दो। मिन बाई टी मैं निकला घर से मैं देखो ये मैं निकला घर से। अच्छा मैं निकला घर से हाँ अब देखो इला ला लिया मैंने, तरफ इलल मस्जिद मस्जिद की तरफ हाँ बोलो मस्जिद मस्जिद के जाने। मस्जिद के जाने मस्जिद ली मिनल बैती सर ये मस्जिद नमाज के लिए इस सलात की नमाज के लिए, ली बोले तो के लिए। अच्छा इंग्लिश में पढ़ो। आई exited फॉर from home towards मस्जिद नमाज और नमाज। और नमाज क्या है मुश्किल है? खरजतु मिन बैती अल मस्जिदी आज घर कर लो, खुद का घर को मिनल बैती कर लो। मिनल बैती अच्छा खरजतु मिनल बैती जिस पे हाथ रखो मैं मस्जिदी निकला घर, देखो घर से हाँ मस्जिद के तरफ नमाज के लिए। ली ली सला लिस्सला लिस्सला ठीक है। यस इस तरह से आपको कुरान पढ़ना आ रहा है। अब देखो ये बोलते हैं, देखो पढ़ो जरा कोई। अबू बकर बोलो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अन के माने क्या है? अबाउट हिम। अच्छा तो बोलो जब भी हम नाम लेंगे सहाबियों का तो क्या कहेंगे? अल्लाह राजी हो उससे देखो हु कौन है? एक आदमी के लिए है, उससे बोलो उससे अल्लाह राजी हो दुआ कर रहे हम। अब आप बोलो आयशा तो रजी अल्लाह अन्हा। अब ये लेडी है उससे अल्लाह राजी हो, उससे अल्लाह अनहु मर्द के लिए, अन्हा औरत के लिए। बराबर देखो मैं धीरे धीरे प्रोग्रामिंग कर रहा, आपकी धीरे 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 कर रहा, तो आदत होते होते आपको मजा आएगा। चलिए अब अपने जा रहे अपने पास्ट टेंस वर्ब की तरफ। तो सीखेंगे ना अपन पहले। चलिए अपने रेगुलर में बोलो। दो टाइप के वर्ब होते हैं, कौन से बोलो? लाजिम और मुताद्दी। हाँ चलो कौन इंग्लिश में कौन बोलेगा? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव शाबाश, ट्रांजिटिव। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव अच्छा मैंने एक शॉर्टकट बताया था पहचानने का, क्या है भाई? दो सवाल करना। किसको सवाल करना? ये दो एक्शन वर्ब को सवाल करना। बराबर। अगर आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा तो इंट्रांजिटिव है, मीनिंग कंप्लीट होने के लिए अगर कुछ लगाना पड़ रहा तो ट्रांजिटिव है। देखो ये फेल लाजिम क्यों है? देखो यहाँ पे क्या आता? वर्ब सब्जेक्ट खत्म, उसमें बोलो ज़हाबा हामिदुन। अब ये हामिदुन को सवाल करो माजिद, क्या सवाल करेंगे? कहाँ गया भाई? What did he go? कुछ भी नहीं मिलता। Whom did he go? नहीं मिलता। तो इत्ते पे ही तबाह हो जाती है, इत्ते पे ही जुमला बन जाता है, क्योंकि एसवी पैटर्न है। एसवी पैटर्न इसको ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इसलिए इंट्रांजिटिव है। करेक्ट। अगला पढ़ो। जलसा हामिदुन। कुछ जलसा सवाल में क्या किससे क्या बैठा, किससे बैठा? बेकार बात नहीं बोल सकते, यानी कि फिनिश हो जा रहा जो जुमला, तो क्या हो गया? फेल लाजिम।
राइट बोलो रजा बोलो हाँ रजा लेकिन मतलब लौटा, हामिद लौटा, क्या हाँ, लौटा, मतलब किसे लौटा, कुछ होगा कुछ नहीं क्या? बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो कौन सा है? इंट्रांजिटिव फेले लाजिम फेले लाजिम हो जाता है, याद हो जाता है आपको, मैं रोज बताता है। आप फेले मुतादी देखेंगे भाई, देखो उसमें क्या क्या होना पड़ता है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब होना, सब्जेक्ट होना और ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी, बगैर ऑब्जेक्ट के इसकी जान निकल जाती है। अगर मैंने माजिद कहा हाँ जॉन और वर्ब लिया मारा किल्ड, हाँ जॉन ने खत्म किया। खतला जॉन रुक 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 रुक, कुछ भी नहीं पूछ रहा। जॉन ने कत्ल किया, इस बात की कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में लिखो तो पुलिस वाला मार के हटा लेता तुमको, क्यों? तो जिसका कत्ल हुआ वो लिखा हुआ ही नहीं है बराबर, क्यों? तो ये सेंटेंस ही नहीं है, अच्छा बराबर, कोई मायने नहीं रखता ना ये। ना जॉन ने मारा, किसको मारा पता? आगे को बाप को, जॉन ने बाप को मारा, हाँ जॉन ने कत्ल किया बाप का, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर जब तक का बॉब नहीं आएगा ये जुमला मीनिंगफुल नहीं है, समझे? समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल यहाँ पे बात करो लगेगा कंप्लीट करने, तो वो इंट्रांजिटिव है। हाँ व्हाट का जवाब, व्हाट का मीनिंग नहीं करो। जॉन किल्ड व्हाट, जॉन किल्ड बॉब, हाँ होम का मायने में मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ जरा देखो भला, अकला का मतलब खाया, हामिद का मतलब उन है, तो हामिद ने खाया। सवाल करो क्या खाया, किसे खाया? अतुफा हो, क्या मिल रहा है, क्या का मतलब मिल रहा है? सेब खाया, हामिद ने खाया एक सेब, हामिद ने खाया एक सेब। अब जरा इस वर्ड देखो, शरीब तू, मैंने पिया, मैंने पिया बोले तो क्या हो रहा, मीनिंग होता क्या? नहीं होता। पूछो क्या पिया, किसे पिया? पानी पिया, क्या का मतलब है? पानी अब समझा कि कुछ कुछ पता लग रहा है आपको? तो मुख्तसरन शॉर्टकट में इसकी समरी ये होगी, ऐसा वर्ड जो अपने बाद और एक वर्ड को डिमांड करता, उसको मुतादी कहते हैं ट्रांजिटिव। बोलो ऐसा वर्ब जो, ऐसा वर्ड जो पेन पेंसिल लाओ जाओ, डिमांड करता, पेन पेंसिल लाओ जाओ, ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड को डिमांड करता उसको बोलते हैं। ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड को, जो खामोश, ऐसा वर्ड है, वर्ड नहीं है, ऐसा वर्ड जो एक वर्ड की डिमांड करता अपने बाद। पढ़ो पढ़ो, ऐसा वर्ड, ऐसा क्रियापद, ऐसा क्रियापद, ऐसा वर्ड अपने बाद एक और लफ्ज की डिमांड करता मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं मुताद्दी। और ऐसा वर्ड जो डिमांड नहीं करता, शरीफ है बच्चा, उसको बोलते हैं लाजिम। गया क्या भेजे भी आपके? यस सर। ऐसा वर्ड जो एक वर्ड की डिमांड नहीं करता, लाजिम। वर्ब क्या और कौन नहीं आ रहा? which demands an object to complete its meaning. यस बॉस। आप देखो फतह, पढ़ो, फतह ने खोला, हामिद ने खोला, क्या खोला? सवाल करो क्या खोला, किसे खोला? दरवाजे खोला। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट है, मफूल, मफूल की डिमांड कर रहा है नहीं, इसलिए उसको मुतादी कहते हैं। शरीबा, हामिद ने पिया, क्या पिया? पानी पिया। पैदा करा अल्लाह ने, क्या पैदा करा? इंसान को पैदा करा। शरीबत आमीना, तो आमीना ने पी, क्या पी? पानी पी। दरबा हामिदुन, हामिद ने पीटा, किसको पीटा? बच्चे को पीटा। हाँ। फहीमा, फहीमा का मतलब समझा, महमूदुन समझा, क्या समझा? सबक समझा।
तो ये रेड में जो दिख रहा है एक्स्ट्रा वर्ड है, ये काले वाले डिमांड कर रहे इसको, तो अपने मीनिंग होते, नहीं तो होती नहीं। अगर मैंने पढ़ा शरीबा हामिदुन, हामिद ने पिया, शराब पिया, जूस पिया, कोको पिया, क्या पिया मालूम ही नहीं, पानी पिया भाई। बराबर, अब बैठा दिमाग में? यस। हाँ, पढ़ो। ज़हबत इमा आमीनतु अमीनतु इला इला हजर पढ़ो, हजर है। जर जर रुको रुको, सब रुको, सब जर रुको। आया बोल के ज़ेर। अरे रुक, हाँ ये क्या है? हर्फ जर है। ज़ेर आता, इस्माता, इस्माता बोलो, हमजर है तो इस्माता बोलो। उसके बाद जर के बाद इस्मा आता और ज़ेर तो ज़ेर आता। हाँ ये ज़ेर आता, अलिफ लाम, ये कौन नया बांध दिया बच्चे ने, नई बात बोली। हर्फ जर है तो इस्म आता और उसके नीचे एक या दो ज़ेर आते। तो इसका फॉर्मूला लिखता माजिद भाई। हर्फ हर्फ जर, जर बोलो, जोर से पढ़ो। हर्फ जर, इसका इफेक्ट क्या होगा? इस्म आता, इस्म मजरूर बोलो। इस्म मजरूर, हाँ वो जो आता ना जर का पूरा नाम मजरूर है। और इस्म मजरूर, तो जोर से पढ़ो। हर्फ जर आया तो इसमें मजरूर, हर्फ जर इस्म मजरूर, सब बोलो। always followed by वो फॉलोड बाय सब छोड़ दो। हर्फ जर इस्म मजरूर। हर्फ जर इस्म मजरूर। अच्छा मैंने माजिद तुमको कहा सलाम वालेकुम, हाँ, तुम क्या बोलते? वालेकुम तो ऐसे ही चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, हर्फ जर इस्म मजरूर, खलास ये याद रख लो। हाँ, हर्फ जर ज़हबत ज़ैनबु इला सूक़, देखो ज़हबत का मतलब गई ज़ैनब, गई किधर गई? मार्केट की तरफ गई। बाजार की तरफ। कैसे बोलो? मार्केट के हर तरफ, जर बोलो, जर इस्म मजरूर, मजरूर, हर्फ जर इस्म मजरूर। अब बोलो ज़हबा अलीयुन इलल मस्जिदी, अली गया। हाँ बोलो, हर जर इस्म मजरूर। हाँ, हर्फ जर इस्म मजरूर। हाँ फिर बोलो ज़हबत आमीनतु इलल जामियाती, आमीना गई यूनिवर्सिटी की तरफ। जर इस्म मजरूर, यस, हाँ ऐसा ये कुरान में जो है ना, ये कम से कम 1 लाख बार आया। कितने बार? अरे बाप रे, हाँ आप पढ़ो। मिनट। हाँ देखो, ज़हबत खदीजतु इलल मदरसती, खदीजा गई मदरसे की तरफ। जर इस्म मजरूर, जर इस्म मजरूर। ज़हबत आइशतु इलल बैती, आयशा की घर की तरफ। घर इस्म मजरूर। ज़हबा हामिदुन इलल मिरहादी, हाँ हामिद गया बाथरूम की तरफ। मिरहादी टॉयलेट की तरफ गया। तो हमारा जुमला बनाने के लिए मैंने बताया था 4 चीजें लगेंगी। पहला क्या लगेगा बोलो तो 4 बताया था मैंने। पहला फाइल, वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब फ्रेज। फाइल, मफूल, मुतल्लिक़ फेल। यस, फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिक़ फेल। मुतालिफ फेल। हाँ ये के बारे में मेरे को ज्यादा बीमारी है, जानकारी। रोज बोलता है। फेल, फाइल, मफूल, मुतलफ़ी फाइल। शाबाश। तो देखो फी आ गया
अल बैती को तूने क्या कर दिया, फिल बैती। बराबर है, फिल बैती है। अगर नकीरा है तो क्या होता माजिद, फी बैतिन होता। बैतीन बराबर है, नकीरा का मारूफा का। समझ में आया सबको? यस। अब पढ़ो, ज़रबा हामिदुन बिलालन। जरबा हामिदुन बिलाल। अब तुम बोलो, ने कहा हमारा, तुम बोलो, मैं इसको उर्दू अरबी में बनाते हैं। जरबा हामिद ने बिलाल को हामिद ने बिलाल को मारा मार्केट में, फिस्सूखी। अच्छा, मार्केट में सूखी बिस्सूखी। हामिदुन बिलालन बिस्सूखी फिस्सूखी, फी उर्दू में। में। हाँ, अब देखो ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, जरा पढ़ो। द बॉय किक द फुटबॉल। तो बॉय किक द फुटबॉल। बॉय ने किसको लात मारा जी, फुटबॉल को। पैसिव बोला, फुटबॉल बाय बॉय। हाँ, तो ये इसको मारूफ बोलते हैं, इसको मजहूल बोलते हैं। मारूफ मजहूल। यस बॉस। ये आ गया, देखो यहाँ पे जलसा हामिदुन, बैठा हामिद, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनता। बराबर है। ये देखो, खालिद बैठा, हामिद बैठा, कुछ भी बनाओ। अब यहाँ देखो क्या है, खलक़ल्लाहु आदमा। खलक़ा को सवाल करो, क्या किसे आदम किसको को, बनाया? ये ट्रांजिटिव है, ये बनता। इसका ट्रांजिटिव से मफऊल ये बनाएंगे, मैं पैसिव वॉइस बनाने का मैंने बताया था। आदम बनाया क्या करना है गया इसको, अल्लाह से। फुइला फुइला पढ़ो, फुइला फुइलल्लाहु हामिद। अबे फुइला नहीं बे, फुलिखा। फुइला आदम। अरे फुइला निकल, साचा है नहीं, ये साचा है, इसको कर। अच्छा, खुलिकल्लाहु आदम। खुलिकल्लाहु आदम। हाँ चलो, बस समझ में आ गया इतना। एक मिनट इतना ही थे। और क्या है जी, खलक़ल्लाहु आदम का खुलिकल्लाहु आदम इतना ही। हाँ इसमें चेंज क्या आता जरा बता देता हूँ मैं। हाँ हेलो, इसमें इन्हें मजहूल रहने से करने वाला चीज गायब हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या बन गया, आदमो हो जाता है। आदमो खुलिकल। हाँ, ये पैसिव में हो गया, पैदा किया गया आदम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब्जेक्ट आउट हो जाता। हाँ, उससे तो उसको मजहूल बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। देखो पढ़ो यहाँ पे, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, तो क्या बन गया, पैदा किया गया आदम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। वो दो, मैं थोड़ा थोड़ा क्या करना मालूम क्या आपको, मिठाई के डब्बे में से एक एक मिठाई ले जाके आपको उसका स्वाद दे रहा हूँ। बराबर। तो कल आ जाएंगे आपको। पढ़ो, फतहा बोले तो खोला, खोला, फतहा। कौन खोला ये, खोला। रुको रुको रुको, पेशवा कौन है, ज़ैद है। दो पेशवे, ज़ैद ने खोला, क्या खोला, दरवाजा खोला। बाबा दरवाजा। तो फतह के बाद भी जबर वाला नहीं आएगा, यहाँ पे जबर वाला है तो काम जिससे हुआ। तो क्या करना है फुतिहा बाबू। नहीं वो छोड़ दे माजो, अभी ना को, अभी ना। हाँ रुक जा। तो यहाँ पेश वाला आएगा, करने वाला, और यहाँ जबर आएगा जिस पर काम हो। बोलो फतहा, बोलो फतहा ज़ैदुन बाबन या बाबा। हाँ अब बोलो साला, साला वो तो पूछा, साला। ज़ैद ने पूछा, हामिद को, क्या पूछा, सवाल पूछा। हाँ, दो ऑब्जेक्ट आ रहे, इसके साथ दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं। हाँ, ऐसे बोलो ज़ैद ने सवाल किया, बोलो ज़ैद ने सवाल किया। देखो ज़ैद ने पूछा हामिद को एक सवाल, ज़ैद ने पूछा हामिद को एक सवाल। कोई याद बात करना नहीं है, धीरे धीरे आपके दिमाग में मैं डालूंगा। अखस्तु, तू आए तो मैंने, बोलो मैंने इतल्ला दी। देखो इतल्ला दी, किसने इतल्ला कौन पाया, जबर। देखो जबर को ये क्या, हाँ है, मैंने इतल्ला दी ज़ैद को। हाँ एक सवाल की,
सवाल की एक सवाल आसान सवाल की, आसान सवाल की तरह। मैंने चिल्लाती जैद को सवाल आसान है। हाँ, सहेल बोले तो आसान। आसान। हाँ, फिर पढ़ो। ज़हाबा बोले तो गया बोले तो पेश वाला कौन है? ज़ैद है। ज़ैद क्या? जैद क्या गया गया? मुताल्लिक़ फेल। जैद बोलो गया मस्जिद के तरफ। अजर इसम मजरूर। हाँ, दर इसम मजरूर उर्फ जर बोलो पढ़ो, मायने बोलो। ज़ैद गया मस्जिद के जानिब। जैद गया मस्जिद के तरफ। देखो, ये हो गया वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, अब ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। गरजत, गरजत औरत निकली। कौन औरत है? आमीना निकली। ग्रुप 2 से आमीना निकली। किधर निकली? मिनल बैती, घर से निकली। मीन हर पे जर है। मीन हर पे जर है, इसलिए इसमें आज समझ में। हाँ, रजाना ना बोलो तो हम लौटे, हम वापस आए। मिनल फसली क्लासरूम से हम लौट कर आए। मीन हर से जर आगे सम है तो मजरूर हो गए। हाँ जी, मजरूर। हाँ जी। हाँ, चलो, अगर हमने फेल को मां लगाए तो क्या बनेगा? नेगेटिव नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो। मां फाला, he did उसने not नहीं know, किया। उसने नहीं किया। उसने नहीं किया, किसने मां नहीं किया, जाला, उसने नहीं बनाया। नहीं मां बनाया, नसरा, उसने मदद नहीं उसने किया। मां मदद नहीं कतला, किया, उसने कत्ल नहीं किया। नहीं किया, मां दखला, वो दाखिल नहीं हुआ। मां खरजा, वो नहीं निकला। मां ज़हबा, वो नहीं गया। मां कसरा, उसने नहीं तोड़ा। मां ज़रबा, उसने नहीं मारा पीटा। मां जलसा, वो नहीं बैठा। चलो, इसकी गर्दान कर लो। माँ पढ़ो। मां फाला, पाला, मां फाला, माँ पाला, मां फालो, फालू मां फालत, फालत माँ फालता फालता, मां फालना, फालता, मां फालतुमा, मां फालतुम, मां फालती, मां फालतू, मां फालतुना, मां फालतू, मां फालना। माँ फालतू माँ फालता। हाँ, अब देखो, मां नसरा करेंगे। मां नसरा, मां नसरा, मां नसरो। माँ नसर माँ नसरा माँ नसरू मां नसरत, माँ नसरत माँ मां नसरा नसरता, मां माँ नसरना। नसरता मसरना मां नसरता, मां नसरता नसरतो, माँ मां नसरतु माँ नसरतुम। नसरतुम मां नसरती, मां नसरतुमा, मां नसरतुना। नसरतो, मां माँ नसरना। नसरतु माँ नसरतुना माँ नसरतु माँ नसरना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी लो, याद करके आना है, कल होमवर्क है। लिए? हाँ, चलो, ये एक पढ़ो। अच्छी बात है। माँ खतला, उसने नहीं कत्ल किया। माँ खतला, उन दोनों ने कत्ल नहीं किया। माँ खतला, माँ खतला, माँ खतलू, उन लोगों ने नहीं क्या माँ खतल खतलत, माँ खतलता, माँ खतलना। खतल माँ खतलता, माँ खतलतुमा, माँ खतलतु, माँ खतलती, माँ खतलतु, माँ खतलतुना, माँ खतलतु, माँ खतलतु। स्क्रीनशॉट ले आओ। माँ कतलना। बस नहीं उठाई। नो बनी। क्या हुआ, क्यों ना? हाँ, और एक करते क्या, जाला बना, हाँ, बनाते सर। बना, माँ बोलो। जाला माँ जाला माँ जाला, माँ माँ जाला, जाला माँ माँ जालू, माँ जाला माँ जालना जालता, माँ जालता, माँ जालत, माँ जालतुमा, माँ जलतुमा माँ जलतुमा माँ जलतू माँ जलना ओके, आज एक और चीज बता दे के मैं खत्म करता हूँ। ओके।
हाँ, कद लगाओ, कद قد فعل قد قد कद فعل فعل قد वो है कर فعل चुका। अच्छा فعل قد पास्ट فعل पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इसको बोलते हैं माजी करीब। राइट। قبال तो उर्दू में पढ़ो, उन दोनों मर्दों ने किया है, कर चुके हैं, कर लिया है। सही है, वो है कर चुके, वो है कर चुका। उन दोनों मर्दों ने किया है उन दोनों ने कर दिया। सीधी बात बोलो यार, देखो माँ, देखो खत कतबा, हाँ, he has written, he वो has है written। लिख चुका। हाँ, लिख काम चुका, खत्म he हो has गया, written। काम खत्म हो गया ना, वो है खा चुका, वो है जा चुका, मैं हूँ पढ़ चुका। हाँ बोलो, खद जला, वो है बना चुका। वो है जा चुका। है पढ़ चुका ये पढ़ो, खद खतला, वो है कत्ल कर चुका, कत्ल करने का काम हो गया। he has killed। उसने कद बासा, वो है भेज चुका। कद साला, वो है पूछ चुका। हाँ, ये देखो आपके लिए नया है, लिख लो। ये रोज रोज करे तो क्या होता है, याद ही हो जाता। निस्बत मारूफ की करता है। जब भी खद आएगा तो दो टाइप के सेंटेंस बनेंगे, यकीनन उसने किया या कर चुका है, ऐसा आता, समझे? करीब हाँ, अब ये पढ़ो, खद कतबा का मतलब क्या होगा, पढ़ो। he has written। He has written, वो है लिख चुका। लिख लिया इख्तियार का मतलब बताओ। he has got बना चुका। बना चुका बना चुका। अब ये पढ़ो, कद साला का मतलब क्या है, he has asked। वो है भेज चुका। आसा का मतलब है he has sent। कद खतला का मतलब he has killed। he has killed। बहुत आसान है बेटे, आदमी बहुत ही आसान है। अब बोलो, फाला फाला फालो, खत फाला खत फाला खत फालो, फालत फालता फालना, खत फालत खत फालता खत फालना, खत फालता खत फालतुमा खत फालतो, खत फालती खत फालतुमा खत फालतो ना, हो गया आपका। कद फाला कद फाला कद फालू। चलिए लास्ट आइटम चल रहा है अपना, अभी लास्ट आइटम पे जा रहे हैं अपन, आज का रिवीजन। ऐसा रोज रोज करने से आप स्मार्ट बन जाते हैं। हाँ, आप जरा देखो भला, इसके पहले हम पढ़े थे। हाँ, ये पढ़ो, क्या है, 3 जबर पढ़ो। खलकनी भाई में बताएगा, मुझे बताओ। खलकना नहीं है, खलकना नहीं है, यहाँ पे जबर है। खलकनी, उसने मुझे पैदा किया। शाबाश शाबाश, एक बाजी में सही। इसके अंदर क्या है, ही पैदा किया मुझे, क्रिएटेड। इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, क्योंकि जबर है, यहाँ पे जबर है, जबर है, और इसको जोड़ा रहे अपन नी से। ही क्रिएटेड मी, उसने पैदा किया मुझको। अब फिर चलो, पैदा किया तुझको। He created him. He created they all them. तो आपको क्या याद रखना है, बोलो, ये लास्ट लेटर पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत गलत मतलब होते हैं, दोज़ख में जाते हैं। क्या देखना है, ये जबर देखना है। अच्छा, ये जबर की जगह पे अगर समझो सुकून आ गया तो क्या होता, देखिए यहाँ देखो अब क्या है, ये बन जाती है कोई गर्दान। जरा मुंह बंद करो। देखो, खलका खलका खलकू, खलकत खलकता खलकना, ओ खलक तुम ती तुमा तुन्ना ईला, तो बोलो खलक तो, बोलो खलक तू
ये इसको पढ़ेंगे पहले माजिद साहब, जब भी सुकून दिखेगा ना उससे पहले अलग पढ़ेगा मैंने पैदा करा। मैंने पैदा किया। हाँ, और ये जो पढ़े क्या था, तीसरे पे जबर था, तीसरे पे जबर था, यहाँ पे देखो खलका था, उसने पैदा करा। यहाँ राइट से लेफ्ट चलना है माजिद, देखो जरा लिख के रखो ये, जब तुमको 3 जबर दिखेंगे ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, समझ में आया माजिद? हाँ He created me, बराबर, he created you, he created us, he created you all, he created him, he created they. बराबर। अब लेकिन इस पे जबर है, तो इस पे अगर सुकून आए तो क्या होता? सुकून आपको होते left to ही right। हमको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ता। अच्छा 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 शाबाश अच्छा, शाबाश। अब देखो खलक तू, खलक ये दिख रहा, सुकून दिख रहा आपको? हाँ खलक। हाँ, ये माजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल याद रखना। समझा। ये माजी में दिखा, क्या दिखा आपको यहाँ पे? सुकून दिखा कि यहाँ से आना। मैंने पैदा करा, I I have created। I created, बराबर। और खत लगा देगा माजू तो I have created हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अब देखो ता लगाओ, खलक को ता लगाओ, ता बोले तो यू वन मेल तू क्रिएटेड, बनाया, तू बनाया, वी ऑल क्रिएटेड, खलकना, हमने बनाया, you all created, one created, you all created। समझ में आ गया? ये गेम समझ आ रहा है, मुझे समझा रहा था। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। तब आप तैयार हो जाएंगे, हफ्ते के बाद कुरान के आयतें पढ़ने के काबिल हो जाते हैं आप इंशाअल्लाह। शुक्रिया भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सर। जज़ाकल्लाह सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की क्लास में हमने एराब देखे थे। एराब वाहिद इस्म के और मुज़क्कर के, फिर उसके बाद तस्निया और जमा के एराब, उसकी एराबी हालत तब्दील करके देखे थे, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। देखो रे, बस कर अब, दादा जोरे बंद कर दे। ये एक इसम है मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, ये नकीरा है। हाँ इसकी एराबी हालत क्या है? अभी रफा है, हालत रफा है। इसकी हालत रफा से हालत नसब करना है तो क्या बनेगा? मुस्लिमान। मुस्लिमन हो जाएगा। और चांद साहब अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। और इसके बाद इसकी एराबी हालत जर होना है तो क्या बनेगा? मुस्लिमीन, मुस्लिमन, मुस्लिमन और मुस्लिमीन। अब ये वाहिद है तो वाहिद से तस्निया बनाना है, डुअल बनाना है तो क्या मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, उसका मुस्लिमानी। अब इसकी एराबी हालत हालत नसब होंगे तो क्या बनेगा? मुस्लिमैनी। और वो भी मुस्लिमैनी। और हालत जर भी मुस्लिमैनी। अरबों ने ये आसानी करके दिया अरबों ने हमारे लिए, मुस्लिमैनी।
मुस्लिमूना उसके बाद जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, उसका मुस्लिमीना, मुस्लिमीना मुस्लिमीना इसका क्या बनेगा? मुस्लिमीना। मुस्लिमीना मुस्लिमीना और जर भी मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो ये हो गया मुजक्कर के लिए। इसको पढ़ने का तरीका मुस्लिमन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। एक इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, तो सीधे हाथ की तरफ मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। तस्निया के लिए मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। जमा के लिए मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना ये इसका पढ़ने का तरीका है। तो ये हो गया मुजक्कर इसम के लिए। अब इसी तरीके से यही इसम को मोन्नस बनाना है, तो मोन्नस बनाने के लिए तरीका क्या है? मुस्लिम, लास्ट में ता मरबूता लगा देना है। मरबूता लगा देंगे आखिर अल्फाज में। मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन। अब मुस्लिमतुन हालत रफा है, तो इसकी एराबी हालत तब्दील होगी नसब में, तो क्या बनेगा? मुस्लिमतन 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 मुस्लिमतन। जर हालत जर मुस्लिमतिन। ये हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। अब वाहिद है मोन्नस इस्म, इसको तस्निया बनाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी मुस्लिमतानी। मुस्लिमतानी ये वाहिद से तस्निया बन गया, सिंगुलर से डुअल बन गया। अब इसकी एराबी हालत जैसा हमने देखे थे, तस्निया बनाने के लिए अलिफ लग गया, और एराबी हालत चेंज करने के लिए क्या करना? अलिफ से या में चेंज करना। तो जैसा मुजक्कर का हमने करे थे मुस्लिमैनी, वैसे ही मोन्नस का चेंज करना है। सेम, खाली अलिफ चेंज होगा या से। मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी। तैनी और फिर जर्री हालत मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी। अब इसका पढ़ने का तरीका मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। वो ऐनी था, ये तैनी होगा। वो आनी था, ये तानी होगा। आनी, ऐनी, ऐनी, तानी, तैनी, तैनी। तो ये हालत रफा, नसब और जर, ये तीन हालतें होंगी। अब यहां तक का मामला सब क्लियर है। म्यूजिक के हिसाब से सारी गाड़ियां चल रही थी, सारे मामले चल रहे थे। लेकिन जमा मोन्नस के लिए जब जमा मोन्नस बनाने का मामला आया, तो वहां पे भी गड़बड़ हुई थी। मुस्लिमतूना होना चाहिए था, लेकिन बना क्या? मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन बना। मुस्लिमातुन। अब तस्निया बनाने के लिए अलिफ और नून लगाए थे, और जमा बनाने के लिए मुजक्कर में वाव नून लगाए थे। तो अलिफ नून या फिर वाव नून, ये हर्फ की तब्दीली आई थी, इसके हिसाब से जमा और तस्निया बन गया था। लेकिन जब मुस्लिमातुन जमा मोन्नस बनाने की बारी आई, तो वहां पे ता के ऊपर फिर से हमारी हरकत आ गई, तनवीन आ गई। क्या आ गई? तनवीन आ गई। तो ये अलिफ को हमने या से तब्दील किए थे, वाव को या से तब्दील किए थे। अब यहाँ पे कोई तब्दीली लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो तुन है, दो पेश की जो तनवीन है,
یہ جو حرکت ہے لاسٹ میں، چاہے وہ دو پیش آؤ چاہے وہ ایک پیش آ جاؤ، خالی وہ حرکت کو چینج کرنا ہے. عورتوں نے بھی ہمارے لیے ایک کام آسان کر دیے بیچاروں نے، جمع مؤنث مہیلا منڈل نے. اب یہ مسلماتن ہے تو یہ ہو گئی اس کی حالت رفع. اب اس کی حالت نصب اور جر چینج ہونے کے لیے صرف یہ آخری حرف کی حرکت چینج ہوتی، بس. یہ تن ہے تو یہ بنے گا مسلماتن. دو زیر آ جائیں گے. اب یہاں پہ دو زبر کا کام نہیں ہے جمع میں، یہاں پہ دو زیر آ جائیں گے، مسلماتن اور مسلمات. اور اور مسلمات ہی جیسا کہ چاہیے. ہم شروعات سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حالت رفع حالت نصب اور جر دونوں بھی سیم ہے، ایک تو یہاں جیسے پہ بھی چلتے ایک جیسے مسلمات ہی سیم ہو چاہیے. جائے. مسلمہ تن. تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین. جمع کے لیے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. ایسا اشارہ کر کے پڑھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. مذکر اسم کے لیے مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اور ان کی تمام کے اعرابی حالت. کوئی سوال ہے کسی کو، کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے. کوئی سوال ہے؟ سر تو 14 کو اعرابی کیسے دیکھتے رہیے سر؟ جی اچھا 14 سیغے. نہیں، یہ مسلماتن میں اتنے طریقے کیا بڑی کچھ آگے جیسا اینا اینا وہ نہیں کچھ نہیں بس اتنے ہی رہتے. 14 سیغے جو بنتے وہ فعل کے بنتے. ہاں ہاں نہیں اس کے آگے اتنا ہی ہے نا، سب آگے نہیں کچھ. بس 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 اتنا ہی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ مسلمن مذکر اور مؤنث دونوں ملا کے یہ ہو گئے 9 اور وہ 9. 9 اور 9 18. مذکر کے 9 اور مؤنث کے 9. 9 18. واحد، تثنیہ، جمع، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. تو جبھی بھی کوئی اسم ہم کو نظر آتا تو اس کا DING نکالنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا پھر نکیرہ ہے. دوسری چیز اس کی اعرابی حالت دیکھنا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. تیسری چیز اس کی دیکھنا ہے عدد کے اعتبار سے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا پھر جمع ہے. اور چوتھی چیز یہ دیکھنا ہے جنس کے اعتبار سے وہ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے. تو جب یہ پہچان لیں گے آپ تو پھر کسی بھی جملے کے اندر، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، اس اسم کا کردار آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا ہے جملے میں. سر فاعل ہے ہیلو. یا مفعول ہے یا کچھ اور ہے. ہاں جی سر. پوچھیے. سر حالت رفع، حالت نصب اور جر معنی چینج نہیں ہوں گے سر؟ معنی چینج نہیں ہوتے. معنی کب چینج ہوں گے؟ جب جملے میں ترتیب کے مطابق اس کے معنی چینج ہوں گے. جملے میں کہاں آیا، وہ کس وجہ سے استعمال ہوا، تب اس کے معنی چینج ہوں گے. اور کوئی سوال؟
नजर आ रहा बोर्ड पे लिखा हुआ? जी सर। जी सर। पढ़िए क्या है। शुरुआत में है अल मुस्लिमीना, उसके बाद है अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमीना अल मोमिनाती। अल मोमिनाती। जी अल मोमिना अल हाफिजीना। अल हाफिजीन। अल हाफिजात। अल हाफिजाती। जाती। जाकिराती। जाकिराती। अब ये कितने इसम हो गए? 5 वाहिद 5 जमा 8 है ना? 8 है 8 सर। इसम हो गए ये। 8 में से हमको पहचानना है। अब जहां भी इसम नजर आ गया तो हमको DING देखना है। उसका सबसे पहले देखना है डी, यानी कि मारिफा है कि नकीरा है। उसके बाद उसकी एराबी हालत देखना है। उसके बाद नंबर देखना है। फिर उसके बाद जेंडर देखना है, यानी कि जिन्स देखना है। तो उर्दू में, अरबी के अंदर ये जो DING है इसको बोलेंगे ग्रामर की जुबान में वुसात, मारिफा या नकीरा। एराब, एराब, नंबर, अदद और ये जिन्स। जिन्स, वुसात, एराब, अदद, जिन्स। किसी भी ग्रामर की किताब में पढ़ेंगे आप तो ये 4 नाम आपको मिलेंगे इसम के ताल्लुक से। वुसात के एतबार से पहचानना है कि मारिफा है या नकीरा है। नकीरा की पहचान है तनवीन और मारिफा की पहचान अलिफ लाम। ये अल मुस्लिमीना मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है सर। मारिफा है। तो वुसात के एतबार से वो हो गया मारिफा। अब एराबी एतबार से उसकी हालत देखना है। एराबी हालतें 3 है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। अब इसकी एराबी हालत पहचानिए क्या है? रफा है सर। रफा हालत, शाबाश। और अदद में सर नहीं, एराब में फेल हो गए आप। एराबी हालत बताइए क्या है? नसब नहीं सर, नसब बोले। नसब और जर दोनों आ जाएंगे। हाँ, नसब और जर दोनों है। हालत नसब और जर दोनों भी सेम रहती। म्यूजिक देखो, ईना, अल मुस्लिमीना, ईना, ईना, ऊना आता तो हालत रफा है, ईना आया तो हालत नसब और जर है। ये दोनों भी हालतें हो सकती है, हालत नसब और हालत जर। लेकिन जुमले में देखना पड़ता है कि ये हालत नसब और हालत जर क्यों आई, फिर उसके एतबार से उसके मायने तब्दील होंगे। ये हो गया एराब। अब अदद के एतबार से इसका अदद क्या है? वाहिद है, तस्निया है या जमा है? जमा है। अगर आईनी होता तो तस्निया होता, ये ईना है तो जमा है। जिन्स के एतबार से मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है ये इसमें, तो ये है इसका DING। अब अल मुस्लिमाती ये क्या है? वुसात के एतबार से मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में अलिफ लाम आ गया। अब उसकी एराबी हालत क्या है? हालत रफा नसब जर है। हालत नसब और जर दोनों भी सेम रहती है, दोनों भी हो सकती। अदद के एतबार से वाहिद, तस्निया, जमा? जमा है ये। अच्छा, अगर तस्निया होता तो फिर मुस्लिमतानी होता या फिर मुस्लिमतैनी होता। जिन्स के एतबार से मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस है। और अगर जमा होता तो क्या होता? मुजक्कर होता तो क्या होता? तो ता नहीं आता सर आखिर में। मुजक्कर अगर मस्कुलाइन
men आदमी, मुस्लिम। कमीना। अगर मर्द मीना, होता है मीना तो क्या सीखा बनता? मीना मीना हाँ, ये मीना यहाँ है, वो मीना। तो ये थी इस्म की एराबी हालतें, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। तो ये याद रखिए कि इस्म की एराबी हालतें कितनी है? 3 है। तीन है। हालत रफा, रफा, नसब नसब और जर। और जर। एराब जो चेंज होता वो 2 तरीकों से चेंज होता। एक है एराब बिल हरकत और दूसरा है एराब बिल हर्फ। एराब बिल हरकत हरकत बिल और एराब बिलहर्फ हर्फ। ये बाय साइन है और ये बाय लेटर है। एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ। हरकत यानी कि लास्ट लेटर पर एक पेश है या 2 पेश है तो वो चेंज हो जाएगा, 1 जबर या 2 जबर में, या 1 जेर या 2 जेर में। और हर्फ यानी कि अगर अलिफ है, आनी है, तो वो बन जाएगा आईनी में। ऊना है, वाव नून है, तो ईना बन जाएंगे। ये है इस्म का एराब। कोई सवाल है किसी को तो पूछिए। जी सर, सवाल है मेरा। ये जी। एराब को मतलब पहचानने की मेन वजह क्या है? जैसा कि अपन अदद तो अपन अदद जानना चाह रहे हैं, और जो है ना जी डी और बाकी के जो 3 है एन और जी, वो तो समझ में आ गया। आई का जी ये एराब समझ में नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दिन में कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ लेते। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक आयत है सूरह फातिहा की शुरुआत की पहली आयत। तो अब यहाँ पे इसका तर्जुमा निकालना है एग्जैक्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हर एक लफ्ज को अलग अलग करना है। अल्हम्दु पहला लफ्ज हो गया, लिल्लाही दूसरा हो गया, रब तीसरा हो गया, आलमीन चौथा हो गया। तो अल्हम्दु का DING अगर निकाले तो मारिफा है या नकीरा है? तो मारिफा है। उसके बाद इसकी एराबी हालत, हालत रफा नसब जर, रफा है। उसके बाद इसका अदद वाहिद तस्निया जमा, तो ये है वाहिद। उसके बाद इसका जिन्स मुजक्कर है या मोन्नस, तो ये है मुजक्कर। उसके बाद लिल्लाही, लिल्लाही ये 2 लफ्जों से मिलके बना हुआ है, एक है अल्लाह और दूसरा है लामजेरली। तो लामजेरली जो आज हमने पढ़े ये है हर्फ, और हर्फ के अंदर हर्फे जर है। हर्फे जर के बाद आया इस्म मजरूर। हर्फे जर के बाद हमेशा इस्म आता और इस्म की एराबी हालत होती है हालत जर। तो अल्लाह इस नाम का अगर हम DING निकालेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा ये मारिफा। दूसरा इसकी एराबी हालत अगर देखेंगे तो लास्ट लेटर के नीचे जेर है, इस वजह से ये हालत जर हो गई। और ये वाहिद है और मुजक्कर है, तो ये दूसरा लफ्ज भी मिल गया। उसके बाद है रब। रब भी एक इस्म है, अगर इसको देखेंगे मारिफा या नकीरा तो ये भी है मारिफा। और दूसरा है इसकी एराबी हालत, लेटर के नीचे लास्ट लेटर के नीचे जेर है, तो इसकी एराबी हालत हो गई हालत जर। उसके बाद ये भी वाहिद है और ये भी मुजक्कर है। तीसरा है अल आलमीन। अल आलमीन के शुरुआत में अलिफ लाम है, तो ये हो गया मारिफा। इसकी एराबी हालत अगर हम देखेंगे तो आखिरी में ईना की आवाज आ रही, इस वजह से ये हालत हो गई हालत जर या फिर नसब। उसके बाद ये वाहिद तस्निया जमा, अदद के एतबार से ये जमा है क्योंकि ऊना ईना
जमा हो गया। मुजक्कर या मोन्नस के एतबार से देखेंगे तो ये है मुजक्कर, इसमें मोन्नस की निशानी आतुन आतिन आतिन नहीं है, इस वजह से ये हो गया मुजक्कर। अब इसके मायने निकालना है, तो मायने निकालने के लिए ये जो एराब ये DING हमने निकाले, तो इनका दो लफ्जों का या दो इसमों का आपस में क्या कनेक्शन है देखना पड़ता, उसके लिए ये DING करना है। तो अब अगर हम देखेंगे गौर करेंगे तो शुरुआत में मारिफा इसम है, हालत रफा है, वाहिद है, मुजक्कर है, अल्हम्दु, उसके मायने है तमाम तारीफें। फिर उसके बाद है लिल्लाही, लिल्लाही मारिफा है, हालत जर है, वाहिद है, मुजक्कर है। उसके पहले हरफ जर आ गया लाम ज़ेर ली, तो लाम ज़ेर ली से जब लिल्लाही जब मिला तो अल्लाह के लिए, तो ये दो लफ्जों का तर्जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए। अब उसके बाद देखना है रब। अब ये जो इस्म आया इसका DING हमने देखे, मारिफा है, हालत जर है, वाहिद है, मुजक्कर है, तो ये मैच हो रहा एज इट इज लिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ। तो ये दोनों मिलके ये जो रब है ये एक क्वालिटी है, एक सिफत है। रब के मायने है पालने वाला, और अल्लाह अल्लाह, तो पालने वाला रब, ये दोनों का DING मैच हो गया, तो ये सिफत और ये मौसूफ हो गया, दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया, वो मुरक्कब तौसीफी, एडजेक्टिव फ्रेज। रब अल्लाह के लिए तमाम तारीफें, रब अल्लाह के लिए तमाम तारीफें, पालने वाला अल्लाह के लिए, ये हो गया। उसके बाद अल आलमीन, फिर इसका DING मारिफा है, हालत जर है, जमा है, मुजक्कर है। तो हालत जर में आने की वजह है इसके पहले वाला इस्म जो अखफ किया हुआ है, जिसपे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो ये दोनों का आपस में कनेक्शन हो गया, और ये हमने पहचाने इसकी एराबी हालत की वजह से। रब्बिल आलमीन, ये दोनों एक यूनिट हो गए, और इसके मायने हो गए तमाम जहानों का पालने वाला। रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला। अब तमाम तारीफें, तमाम जहानों का पालने वाला अल्लाह के लिए, तो बस इसी वजह से हमको इसका DING निकालना है। दो इसमों का DING जब आपस में मैच होता तो उनका एक कनेक्शन बन जाता, तो वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। दो भी मारिफा कैसे हो? दोनों भी मारिफा है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी, रब भी मारिफा नहीं है, तो इसी वजह से ये सूरा आगे चल के लेने वाले हैं इंशाल्लाह। जो अभी जो पढ़ाया जा रहा आपको, तो आपको बेस पक्का किया जा रहा, जो जो सबक आपको दिया जा रहा आप उसको प्रैक्टिस करते चलिए। एकदम से जब हम आयतों में चलेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये हमने कितना सीख लिए। इंशाल्लाह तो एक एक सबक आपको इंशाल्लाह आगे बढ़ा के फिर हम डायरेक्ट आयतों में चलेंगे, दुआओं में और आयतों में। तो ये इसी वजह से इसका DING निकालना है, मारिफा नकीरा, उसकी एराबी हालत, अदद और फिर जिन्स। जी, और कोई सवाल? तो आज का हमारा सबक क्या है? ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको, सिर्फ सैंपल दिया कि हमको यहां तक पहुंचना है। एराबी हालत 3 है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। एराब 2 तरीके से तब्दील होता, एक है एराब बिल हरकत और दूसरा है एराब बिल हरकत। हरकत यानी कि लास्ट लेटर पर हरकत तब्दील हो जाती, और एराब बिल हर्फ यानी कि आखिरी में हर्फ की तब्दीली हो जाती, तो उसको बोलेंगे एराब बिल हर्फ। ये इतना आज का सबक याद रखिए, जो हमने तस्निया मोन्नस और जमा मोन्नस की एराबी हालत तब्दील की। तो चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं पढ़ी, ईशा पढ़ो जल्दी। ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। पढ़ लो जल्दी जल्दी।